سینیٹر سمینہ ممتاز زہری. جی آپ ہیں ہی ہیں دنیش, آپ کے بغیر کمیٹیاں چلتی ہی نہیں ہیں. جی بہرامن تنگی آپ کے اور دنیش کے بغیر نہیں چلتی. میں غلطی ہو گئی, لفظ رہ گیا تھا. جی سینیٹر سمینہ ممتاز زہری. Question number 5, sir. Sir, I have a supplementary. Sir, what was the advantage of reconstructing of WAPDA after bifurcation and reconstructing? It should have performed, but it's not performing at all. There are line losses, recoveries, circular debts, red tapeism, political appointments. Sir, is there any proposal to conduct a performance of audit on WAPDA? Honorable Minister of State for Law. آپ نے جواب دینا. WAPDA کے منسٹر نہیں ہے, وہ خورشید شاہ صاحب ہے. جی خرم صاحب. جی تھینک یو ویری مچ مسٹر چیئرمین. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ سوال جو ہے وہ وزارت آبی وسائل سے متعلقہ ہے اور ایک لارجر پالیسی کوسچن ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک ہی ادارہ WAPDA جو ملک میں بیک وقت 3 کام کیا کرتا تھا. جنریشن جو بجلی پیدا کرنا ہے, اس کی ٹرانسمیشن جو پورے ملک میں جانی ہے, اور پھر تیسرا سوال جو اس کا سبجیکٹ ہے جس کی طرف سینٹ صاحبہ کا اشارہ ہے وہ ہے ڈسٹریبیوشن. تو یہ 3 الگ الگ سبجیکٹس ہیں, اسی لیے اس کو انبنڈل کیا گیا تھا کہ اس وقت کی حکومت نے یہ دیکھا اور یہ واضح تھا کہ اب ایک ادارہ اتنے بڑے ملک کے جو تینوں ایشوز ہیں اس کو ریزالو نہیں کر سکتا, لہذا ان کو سپلٹ کیا گیا. اس پر ایک سوال قائم ہے اور درست میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ کیا ان WAPDA کی جو ہم کہتے ہیں انبنڈلنگ ہوئی تھی سو کالڈ, اس سے کیا بینیفٹ ہوا. کچھ بینیفٹس ہوئے ہیں کہ اسپیشلائزڈ سیکٹرز ادارے بنائے گئے, کمپنیاں بنائی گئیں. ایشو یہی ہے کہ ملک کے آدھے حصے میں تو ہمیں بہت چیلنجز درپیش ہیں, بلوں کی بازیابی کے حوالے سے, لائن لاسز کے حوالے سے, اور اس پر بھی ایک کنسنسس ہمیں ڈیولپ کرنا ہے پارلیمان کے اس ایوان بالا میں بھی اور ایوان زیری میں بھی, کہ اگر واقعی ان کی درستگی مقصود ہے, کیونکہ we all want, with your permission, the reform in the abstract, but do not want it when it applies to me personally. میرے علاقے کو نہ چھیڑیں, باقی آپ ٹھیک کریں. تو یہ ایک I think آنے والی جو انشاءاللہ پاکستان کے عوام حکومت منتخب کریں گے, اس کے سامنے ایک چیلنج ہے کہ وہ ایک سیاسی عزم اور پولیٹیکل ول کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سیکٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک بڑی سختی کی ضرورت ہوگی ہمیں, بل بازیاب کرنے کے لیے, جو بجلی کی چوری ہے اس کو روکنے کے لیے, اور جہاں اس میں بہت سخت ڈسپلنری ایکشنز انوالو ہوں گے جناب چیئرمین, کہ جو اہلکار ہیں جو اس چوری میں شامل ہیں یا اس لائن لاسز میں جو لوگ ملی بھگت ہے جن کی, ان سب کے اوپر پھر ایک سخت ترین ایکشن ریکوائرڈ ہے, جو کہ ہمیں امید ہے کہ ایک مضبوط حکومت جب آئے گی منتخب ہو کر, تو وہ یہ ایکشن ان کے سامنے پہلے ہی جو چند چیلنجز ہیں ان میں یہی چیلنج ہوگا کہ پاور سیکٹر کو پورا جو مینج کرنا ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے, اور اس کے اندر جو لیکیجز ہیں ان کو درست کرنا ہے, اور وہ پھر سخت ترین پولیٹیکل ول. اور میں دہرا دوں, دونوں پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے عزم صمیم کے بغیر یہ نہیں ہوگا. آنریبل سینیٹر محسن عزیز, سپلیمنٹری پلیز. سر میرا سوال یہ ہے, اب مجھے پتہ نہیں کون جواب دے گا, منسٹر صاحب نہیں ہے, کہ آیا اس کے بعد کچھ اسٹڈی کی گئی 93 کے بعد جب یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے اس کو بائیفرکیٹ کر دیا, یعنی اس کے کام کو بائیفرکیٹ کر دیا انٹو 3 ڈویژنز, اور یہ پیپکوز اور یہ سارے بن گئے, ڈسکوز بن گئے, تو اس کے بعد آیا ہماری کارکردگی میں بہتری آئی یا کمی آئی ایز فار ایز ڈسٹریبیوشن از کنسرنڈ, ایز فار ایز لائن لاسز آر کنسرنڈ. اینڈ سیکنڈلی یہ ہے ایک گروہ میں کتنے سوال کریں گے محسن صاحب؟ نہیں, ساتھ ہی ساتھ کہ جب WAPDA کو انہوں نے کیا بائیفرکیٹ کیا تو اس وقت جو ریٹرینچنگ وغیرہ کچھ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, کیونکہ ہمیں اس وقت بھی دیکھتے تھے کہ جب ان کے پاس 3 رول تھے, اتنی بڑی بلڈنگ اور اتنا ان کا ساز و سامان تھا, اس کے بعد آیا اس میں ریٹرینچنگ بھی ہوئی تھی اس وقت, یا انہوں نے سارے کا سارا سٹاف ریٹین کر لیا تھا؟
Honorable Minister for Power, please. Question. सर अगेन मेरी इस्तदा होगी कि सेनेटर साहब एक फ्रेश क्वेश्चन फाइल कर दें जो मेरे नॉलेज में है वो मैं सवाल के सामने रख देता हूं कि अनबंडलिंग से इसमें वाज़े तौर पर एफिशिएंसी में इजाफा हुआ है कि जो अब चूंकि स्पेशलाइज्ड इदारे हैं जो जनरेशन को देख रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहे हैं, और ये भी सवाल बतौर मुंतखब नुमाइंदे हम सबके सामने है कि क्या पाकिस्तान का जो पब्लिक सेक्टर है उसकी जब चेयरमैन कॉर्पोरेटाइजेशन हुई है, यानी वो काम जो एक अथॉरिटी के तहत था, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको फिर कंपनियां बनाकर उसकी तकसीम की गई। तो ये जो कंपनी का मॉडल है इसमें भी चैलेंजेस हैं, लेकिन पूरी दुनिया चूंकि इसी सिमत की तरफ जा रही है, कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ, तो पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है। सिर्फ हमें जो है वो इस बात को एक तवाज़न कायम करना है, जो तजर्बा इन कुछ महीनों में हुआ है कि एक तरफ तो जो कॉर्पोरेटाइजेशन है उसका ये एक आउटकम है कि जी आप कंपनियां बनाएं और उनको ऑटोनॉमी दें, तो लिहाजा कि जी ऑटोनोमस बोर्ड्स होने चाहिए, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, चाहे वो ट्रांसमिशन कंपनी है। लेकिन जितनी ऑटोनॉमी आप उसको बतौर एक सेमी प्राइवेट सेक्टर के डील करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से और अवाम की तरफ से और ऐवान मुंतखब ऐवानों की तरफ से मुस्तकिल डिमांड यह है कि हुकूमत पूरी तरह उन इदारों पर हावी हो जिनको हम कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए ऑटोनोमस करना चाहते हैं। तो ये भी एक गहरा पॉलिसी का सवाल है कि ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं जिनको हमने ऑटोनोमस किया है, इनको हमें कैसे मैनेज करना है। पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स 2013 में आए, अभी रिसेंटली एक नया कानून जो है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस गवर्नेंस के हवाले से है, तो लिहाजा उसमें रिफॉर्म हो रहा है। लेकिन अगेन ये एक ऐसी चीज है जिसपे सबसे ज्यादा शिकायत, सवाल वाटर डिवीजन का है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा शिकायत तो डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से ना, जो हमारे घरों तक बिजली आ रही है उसके हवाले से हैं। लेकिन देयर आर सीरियस इश्यूज इन जनरेशन ऑल्सो, सीरियस इशू इन जो लॉन्ग टर्म जो ट्रांसमिशन है। वजीर साहब भी तशरीफ ले आए हैं, मेरा बेहतर जवाब दे सकते हैं जहाँ साहब। तो ये सारे इशूज हमारे सामने हैं, तो लिहाजा मेरी सेनेटर साहब से ये गुजारिश होगी कि वो तो आज खुद कोई बेंचमार्क तयन कर दें जिसकी बुनियाद पर हमें बहुत खुशी होगी कि हम तमाम हकायक इस अवान के सामने रखते हैं। Honorable Senator Khoda Babar, supplementary, please. बहुत शुक्रिया सर। सर मैं मिनिस्टर साहब की बात पे आगे बढ़ाता हुआ चलूं। उन्होंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, ये पाकिस्तान में वाकई में डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है। जनरेशन का तो मसला है ही है हमारे मुल्क में, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है। अगर मैं एक सवाल करता हूं सर, इस सवाल का जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, लेकिन मैं माजरत के साथ एक इनके मशवरे के लिए सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं जो ईरान से पाकिस्तान के लिए, ग्वादर के लिए बिजली लेकर आया गया। बहुत अच्छे काम किया, आप बिजली लेकर आ गए, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। आज भी ग्वादर में 12-12 घंटे लोड शेडिंग है। अगर हमारे पास जनरेशन है, ईरान का बिजली है, उसकी बिजली का भी अगर हमें बिजली सही तरीके से नहीं मिलता, तो सर मुझे बताएं इसमें महकमे की खामी है या ये हमारी नालायकियां हैं कि इस तरह से हमारे लोग अभी भी तंग हो रहे हैं इस गर्मी के माहौल में। पूरे मकरान में बिजली नहीं है। मिस्टर साहब, सेपरेट क्वेश्चन, अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो दे दें, ग्वादर के लोग खुश हो जाएंगे, सेनेटर साहब भी खुश हो जाएगा। नहीं, ये कोशिश ये की गई। देखिए हमें तो जो हमारे ग्वादर में बल्कि पूरे मकरान के साहिल पे रहने वाले पाकिस्तानी भाई और बहनें हैं, उन तक बिजली की फराहमी हमारा फर्ज है। लिहाजा उसके लिए अब जामिया चेयरमैन इस जो चंद महीने से ये हुकूमत कायम है, 16 महीने हो जाएंगे, 2 मेजर हमने पेशरफ्त की है। एक तो जो पोलान जीवनी लाइन है वो उसकी हमने बहुत तेजी से हैरान कुन तरीके से उसकी तामीर करके उसको मुकम्मल किया और फिर ईरान साइड से उसको कनेक्ट किया। और ये एक इतना अहम प्रोजेक्ट है जनाब चेयरमैन जिसके लिए ईरान के सदर जो हैं वो खुद तशरीफ लाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने इसका इफ्ताह किया। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सेनेटर साहब ने कि लोकल डिस्ट्रीब्यूशन के ही इश्यूज हैं कि हमें पहले तो वो तमाम हजरात जो सारिफ बनना चाहते हैं उन तक मीटर पहुंचाना है, उसमें कुछ रुकावट है।
आ रही है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि नہ सिर्फ ईरान के जरिए बल्कि इसी हुकूमत में हमने जनाब चेयरमैन एक और प्रोजेक्ट बड़ा अहम मुकम्मल किया है, जो कि नाल बसीमा खुजदार की ट्रांसमिशन लाइन भी मुकम्मल हो गई है। तो लिहाजा ना सिर्फ जो मगरबी तरफ से जो ईरान से बिजली आ रही है बल्कि मुल्क के बाकी जो नेटवर्क को भी हम मकरान के साहिल से जोड़ने की बहुत बड़ी पेशरफ लाइन मुकम्मल है। डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज हैं, अगर कोई स्पेसिफिक जगह के हैं कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हवाले से, तो हम हाजिर हैं, जो पॉइंट आउट करेंगे कोशिश करेंगे। ऑनरेबल सेनेटर मुश्ताक साहब। शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 40। आंसर टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री। मिस्टर चेयरमैन, आज जब मैं आ रहा था तो बिजली में कीमत में 1 रुपए 20 पैसे का इजाफा किया गया है, और ये 23 जुलाई के अखबार है, 7.5 रुपए यूनिट का इजाफा बिजली में किया गया है। मेरा सवाल यह है मिस्टर चेयरमैन कि गुज़िश्ता 15 माह में 500 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई है। 15 माह में इस हुकूमत के 500 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई है। इन्होंने अब टीवी के साथ रेडियो फीस भी, यानी एक तो चोरी है और एक इस अंदाज से कि उसको कानूनी कवर देके कि टीवी के साथ रेडियो का भी अब फीस जो है आवाम देंगे, हालांकि रेडियो है ही नहीं और रेडियो बिजली से चलता ही नहीं है, लेकिन आवाम को दोनों तरीके से लूटा जा रहा है। ये जो जवाब दिया गया है मिस्टर चेयरमैन, बिजली चोरी में सिर्फ पूरे पाकिस्तान में 745 लोग, वापडा के 745 लोग, और उसमें पेस्को का एक बंदा नहीं है, यानी पूरे पेस्को इतना ईमानदार है कि उन्होंने उसमें से कोई एक बंदा भी अमला बिजली चोरी में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये सवाल जो है, जवाब जो है, मुझे बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। आवाम बिल्कुल तंग है जी। मिनिस्टर साहब से सुन तो लो। हाँ, तो मेरी आपसे ये दरखास्त है कि मुझे इसकी वजाहत दी जाए कि पूरे पेस्को में जो पूरे खैबर पुख्तनख्वा को डील करता है, एक बंदे के खिलाफ भी केस नहीं है, और पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 100। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एनर्जी पावर डिवीजन। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। हमने अपनी बसात के मुताबिक जो एनेक्स ए मुतसल किया है सेनेटर साहब के जवाब में, उसमें तमाम जो मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनमें जिन लोगों के खिलाफ केस हुए, तो लिहाजा जहां उन्होंने सिफर का जिक्र किया है, तो हैदराबाद इलेक्ट्रिक कंपनी में 422 लोगों पर भी हमने पूरा मुल्क देखना है, और इसी तरह मुल्तान में 124 लोगों के ऊपर एहलकारों पर केस हुए, लाहौर में 118 पर केस हुए। तो लिहाजा ये नहीं है कि किसी के ऊपर भी केस नहीं हुआ। सिर्फ देखिए मुल्क में जो दूसरा हिस्सा है सेनेटर साहब के सवाल का, वो ये है कि मुल्क में बिलों की बाजियाबी, और जो आप उसको लाइन लॉस कह लें, आप उसको चोरी कह लें, वो उन्हीं इलाकों में है प्रिसाइसली जहां पाकिस्तान की हाकमियत कमजोर है। तो लिहाजा मुल्क के शमाल में, मुल्क के मगरब में और मुल्क के जनूब में ये हमें चैलेंजेस हमारे सामने हैं। तो लिहाजा ये एक भयक वक्त हाकमियत का, यानी ओवरऑल हुकूमत की रिट का, और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की रिट है उसका सवाल है, जिसकी बुनियाद पर हमें आगे बढ़ना है। और इसीलिए मैंने पहले ही जो सवाल हुआ था इसका मैंने जवाब दिया कि ये हमें आने वाली हुकूमत को ये इन ऐवानों की तरफ से अज़म जाना चाहिए। और अब मैं बात खुलकर कर देता हूं कि जब इन करप्ट अहलकारों के खिलाफ सख्त तरीन इंशाअल्लाह एक्शन होगा, चोरी हम कम करेंगे, हम बाजियाबी बेहतर करेंगे, तो ये दोनों ऐवान जो हैं ये उस हुकूमत की ये क्रूसेड होगी लिटरली, अगर हमने पावर सेक्टर को ठीक करना है, कि दोनों ऐवान, उसके जो नुमाइंदगान उसके अंदर अवाम ने भेजे हैं, वो फिर हुकूमत को सपोर्ट करेंगे कि जनाब हमसे ये सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अब इस हुजम तक हमारे लॉसेस आ गए हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर उसका असर है, और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक वायबिलिटी है उस पर उसका असर है, और हमें सबको मिलकर इसको ठीक करना है। जी अभी मैं बात करते हैं। ठीक है, मुश्ताक साहब के पॉइंट आ गए, अभी देखते हैं। ऑनरेबल सेनेटर जाम मेहताब, सप्लीमेंट्री प्लीज। सर आपकी बड़ी मेहरबानी सर। मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, हम भी थोड़ा इस्तिफादा हासिल करने की कोशिश करेंगे। सर एक्चुअली
डिस्ट्रीब्यूशन का खुद ही कहा कि इतने लाइन लॉसेस जो हैं बढ़ गए हैं। मेरे मुताबिक जो है जितनी भी पोस्ट हैं, फॉर एग्जांपल एक तहसील की लेवल पर एसडीओ जो है वो तैनात होता है, लेकिन बहुत सारी जगह पे मैं अपनी तहसील को भी काउंट करते हुए लाइन सुपरिटेंडेंट बिठाए हुए हैं। उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी या उनका सिर्फ यही होता है कि किस तरीके से पैसे कमाए जाएं। मैं मिसाल दूंगा, मेरी तहसील जो पूरे ग्रिड स्टेशन सप्लाई करती थी, इस वक्त सारे गांव कटे हुए हैं, लेकिन शहर सिर्फ उबाड़ो टाउन है। उसका लोड इतना बढ़ गया है कि वो ग्रिड स्टेशन उस कैपेसिटी नहीं है उसमें, तो हर 5 मिनट बाद ये ब्रेक होता है। और ये मैं ये सवाल जाम साहब, ये जो क्वेश्चन है उससे रेलेवेंट रेलेवेंट में यही सवाल करता हूं कि मिनिस्टर साहब बैठे हैं इस वजह से कि मुझे ये बताया जाए कि क्या एसडीओस की कमी है। जब एसडीओ होते हैं कुछ ना कुछ निजाम चलता है, जब आप उसी एसडीओ की पोस्ट पे एलएस को बिठाएंगे तो फिर बहुत सारी खामियां और इस तरीके से लाइन लॉसेस होंगी, तो इनको कंट्रोल करने के लिए। मिनिस्टर फॉर पावर जी। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं मोहतरम सेनेटर साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। हमें जो बुनियादी सतह पर अहलकारों की सख्त कमी का सामना है और उसके लिए क्रिटिकल हमें इंशाल्लाह रिक्रूटमेंट करनी है ताकि हम सर्विस कर सकें। एसडीओज की कमी तो बहुत हद तक मुझे तवक्को है कि आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में पूरी हो जाएगी, क्योंकि तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने स्ट्रिक्टली मेरिट पर अपनी जो एसडीओज की सतह के जो इंजीनियर्स हैं वो हायर कर लिए हैं। लेकिन एसडीओज की मौजूदगी के बावजूद ये चैलेंज है कि जो बुनियादी सतह है, जो आम सारिफ को जहाँ हमें ये खिदमात फराहम करनी है, उधर अहलकारों की कमी है। और ये भी एक तवाज़न कायम रखना है हमें कि इतने अहलकार ज़रूर हों कि वो उस इलाके की जो मामलात हैं उनको दुरुस्त कर सकें। लेकिन हमने यही देखा कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमें मुश्किल भी आई है वो यही है कि अब इस बात को यकीनी बनाना होगा कि रफली उसी इलाके के या कम से कम उस तहसील के लोग ही उन जगहों पर तैनात हों, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग आते उन दूर दराज देहाती इलाकों में आते हैं, लेकिन एक्चुअली वो किसी और जगह के होते हैं, बाद में वो ट्रांसफ़र की कोशिश करें। तो लिहाजा इस वक्त कोशिश यही है, पॉलिसी यही बनाई गई है कि मैक्सिमम लोकल सतह पर रिक्रूटमेंट हो ताकि वो लोग फिर वहाँ रहें और फिर सार्फिन की जो मुश्किलात है उसको दूर कर सकें। ऑनरेबल सेनेटर दिनेश कुमार, सप्लीमेंट्री प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। नो डाउट खुर्रम दस्तगीर खान साहब की काविशें बहुत ही बेहतरीन है और जो इन्होंने तजावीज़ दी तो उनसे भी हम मुत्तफिक है कि हमें अगर इस मुफ्त बिजली खोरी या चोरी से तो हमने मिलकर ही काम करना है। जनाब मिनिस्टर साहब, आपसे एक क्वेश्चन है, मेरे 2 क्वेश्चन है, सॉरी। 2010 से 2023 तक आपने जो दी है कि जी हमने इतने डिस्कोज के ऑफिसरान के खिलाफ कार्रवाई की। एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कार्रवाई की है तो इनमें कार्रवाई में कितनी मुंतकी अंजाम तक पहुंचे हैं केसेस और उनसे कितनी रिकवरी की गई, ठीक है जी, और उनको क्या सजाएं दी गई। एक तो मेरा क्वेश्चन है। और ये मेरा ये है कि जी 13 साल में सिर्फ 600 समथिंग आपने मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की है। ये एक मतलब न समझने वाली बात, ऐसे लग रहा है कि दूध और शहद की नहरें बह रही। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो यहाँ पर लिखा है मुफ्त बिजली, क्या ये हकीकत है कि वापडा के एहलकार जो डिस्कोस के एहलकार हैं उनको मुफ्त बिजली के यूनिट फराहम किए जाते और क्यों किए जाते? थैंक यू जी। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पावर प्लीज। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। जो तफसीली जवाब हमने इस सवाल को सबमिट किया उसमें पूरी तफसीलात हैं, वो आई थिंक लाइब्रेरी में मौजूद है या मैं पढ़ देता हूँ कि हमारे पास जिस किस्म की सजाएं दी गई हैं उसमें डिसमिसल फ्रॉम सर्विस भी है जनाब चेयरमैन। उसमें बाज़ जगहों पर किसी की तनख्वाह 1 स्टेज घटाई गई, किसी की 2 दफ़ा घटाई गई। उसमें सेंशोर भी शामिल है कि उसको सेंशोर किया गया,
ان کو جو ہے مختلف پھر ریموول فرام سروس ہے میرے سامنے, سینچوڈ ہے, ریڈکشن آف ٹائم اسکیل ہے, جو کمپلسری ریٹائرمنٹ بھی اس کے اندر شامل ہے, اسی طرح ریڈکشن ٹو لوور پوسٹ ہے, اگین ریموول فرام سروس ہے, ڈسمسل ہے. تو یہ ہر قسم کی جہاں جہاں جس قسم کی آفینس تھا اس کے مطابق انہیں سزا دی گئی ہے. اگر سینیٹر صاحب کے پاس ایسے کوئی اسپیسیفک کیسز ہیں جن کے کیسز انڈر پروسیس ہوں, وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں سزا مزید سخت ملنی چاہیے, تو ہم حاضر ہیں.